السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ محترم حاضرین، آج کے اس پروگرام میں میرا موضوع ہے کہ اللہ کے نظر میں کامیاب کون۔ ہم جس دنیاوی زندگی میں سانس لے رہے ہیں، یہاں ہر شخص اپنے آپ کو کامیاب بننا چاہتا ہے۔ اپنی زندگی کو وہ سوچتا ہے کہ میری زندگی کامیاب ہو۔ کوئی MBBS ڈاکٹر کی پڑھائی کرتا ہے اور اگر وہ پاس ہو جاتا ہے تو وہ شخص اپنے آپ کو ڈاکٹر بننے پر کامیابی سمجھتا ہے۔ کوئی شخص اگر انجینئر، پروفیسر، سائنسداں بن جاتا ہے تو وہ شخص اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے۔ کوئی شخص اگر جج بن جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے۔ حاضرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل کامیابی اللہ کے نظر میں کیا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ انسان کے تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ آپ اسے جانیے تو انشاءاللہ اس سوال کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین سورہ ذاریات کے 56 نمبر کی آیت میں تذکرہ کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جن اور انسان کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ اسی طرح جب ہم قرآن مجید کی 29واں پارہ سورہ ملک کی 2 نمبر کی آیت کو کھولتے ہیں تو ہمیں یہاں یہ معلوم ہوتا ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ ہی نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے، کس لیے؟ ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون دنیاوی زندگی میں اچھا عمل کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ 2 آیت اس بات کی بیان دلیل ہے، انسان کی دنیا میں تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ صرف جانوروں کی طرح کھائے پیے عیش کرے، یہ ان کی زندگی نہیں ہے۔ جانوروں کی طرح زندگی گزار لے، یہ ان کا زندگی میں آنے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ 2 آیت اس بات کی بیان دلیل ہے جو اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کو کلیئر کر دیا ہے کہ وہ محض میری ہی عبادت کرے اور میں اسے آزماؤں گا یہ رہتی دنیاوی زندگی میں کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے۔ اب آؤ سوال کی طرف، اصل کامیابی اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے بچے ڈاکٹر نہ بنے، ہمارے بچے انجینئر نہ بنے، ہمارے بچے پروفیسر نہ بنے، ہمارے بچے سائنسداں نہ بنے، ہمارے بچے جج نہ بنے۔ آپ سب کچھ بنائیے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اصل کامیابی اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ آپ ذرا اسے دیکھیے۔ جب ہم قرآن کریم کی 4واں پارہ سورہ ال عمران کی 185 نمبر کی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات کھل کر کے سامنے آ جاتی، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اے میرے بندو، ہر شخص کو
मौत का मजा चखना है। कोई भी शख्स इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि हमें दुनियावी जिंदगी हमारे लिए दायमी है, हमेशगी है। मेरे भाइयों, आप ये एहसास कर ले, ये गौर करें, ये दुनियावी जिंदगी तो हम सबों के लिए आरजी है, वक्ती है, ये दायमी जिंदगी नहीं है। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ये क्लियर कर रहा है कि हर शख्स को मौत का मजा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और तुम में से जो शख्स दुनियावी जिंदगी में अच्छे अमल कर लोगे, तुम्हें इनका पूरा पूरा बदला वहां दिया जाएगा। उसके बाद अब देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या बयान कर रहे हैं, फमन ज़ुहज़िहा अनिन्नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। तुम में से जो शख्स जहन्नम से बचा लिया जाए, फमन ज़ुहज़िहा अनिन्नार, जिसको जहन्नम से बचा लिया जाए, व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, और जिसे जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए तो वही शख्स कामयाब है। मेरे भाइयों, देखो यह आयत क्या बता रही है कि असल कामयाबी जो अल्लाह की नजर में है, जिसे जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए, वही कामयाब है। जो लोग दुनियावी जिंदगी में कामयाबी तलाश करते हैं, ये तो आरज़ी व वक्ती है, ये जिंदगी आपके लिए दायमी नहीं है। आखिरी आयत ये मसले को और क्लियर कर देती है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ मेरे बंदो, मेरा रब कह रहा है, ऐ मेरे बंदो, दुनियावी जिंदगी तो महज एक धोखे की जिंदगी है, और तुम इस धोखे की जिंदगी में कामयाबी तलाश कर रहे हो। तो असल कामयाबी क्या है अल्लाह की नजर में, जिसे जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए, तो वो शख्स कामयाब है। आइए और आगे देखते हैं, कुरान मजीद की 18वां पारा खोलो, वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तज़किरा किया है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। इस आयत में देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या वजाहत की है, क़द अफ़लहल मुमिनून, तहकीक के मोमिन कामयाब हो गए। किसके जरिए कामयाब हुए, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जिनकी नमाज खुशू और खुजू हो। मेरे भाइयों, यहाँ भी ये मसला क्लियर कर रही है कि मोमिन अगर कामयाब है तो अपने नमाज के जरिए कामयाब है। अब जरा ईमानदारी से बताओ, कितने ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ हफ्ते में जुमा को नमाज में आते हैं, और कितने ऐसे भी लोग होंगे जो ईद और बकरीद की नमाज को अदा करते हैं, और कितने ऐसे भी लोग होंगे जो सिर्फ किसी की जनाजा में शरीक होते हैं, और कितने ऐसे भी लोग होंगे जो इन सारी नमाजों से दूर भी होंगे। ऐसे भी लोग पाए जाते हैं, और ये तलाश कर रहे हैं कामयाबी दुनिया में। ये कामयाबी की जमानत नहीं है मेरे भाई। कामयाबी तो वो है जो अल्लाह की नजर में नमाज को पाबंदी के साथ अदा करे। एक नमाज को तर्क करने वाला, अल्लाह के नबी का फरमान है, मन तरक सलातन मुतअम्मिदन फकद कफर, जिसने जानबूझ करके नमाज को तर्क किया उसने कुफ्र वाला काम अंजाम दिया। आज कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नमाज को तर्क करके रखा है। अब जरा सोचो मेरे भाइयों, अगर तुम्हें ये कह दिया जाए कि तुम ये हो, तो तुम्हें कैसी मिर्ची लगेगी और तुम्हें किस तरह का एहसास होगा। यहाँ मेरे नबी बयान फरमा रहे हैं कि जिसने जानबूझ करके नमाज को तर्क किया। आज कितने लोग ऐसे भी हैं जो नमाज को अदा करते हैं मगर नमाज के अंदर सुस्ती भी होती है, और वो अपने आप को कामयाब समझ रहे हैं। मेरे भाइयों, जरा गौर करो, उमर फारूक का जमाना है, आप इमामत मुसल्ला पर है। मुल्क शाम का ये शख्स तिजारत के लिए आए हुए, फजर के अजान का वक्त था, फजर की नमाज का वक्त था। आपको जमात मिली है, एक रकात सिर्फ जमात छुटी हुई है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहे कि इनका नाम नोट करो। साहबा कराम कह रहे, या अमीर अल मोमिनीन, ये भी हो सकता है कि इनकी कोई मजबूरी रही हो, एक रकात छूट गई। कहा कि नहीं, तुम इनके नाम को नोट करो। नाम नोट कर लिया गया।
दूसरा दिन भी वही हालत, तीसरा दिन भी वही है। उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु उठते हैं और उस शख्स को पिटाई शुरू कर देती। एक रकात छूटने पर वो शख्स कह रहा है कि या अमीर अल मोमिनीन, मैं आपके यहाँ का नहीं हूँ, मैं आपके इलाके का नहीं हूँ, मैं आपके शहर का नहीं हूँ, मैं तो मुल्क शाम का रहने वाला हूँ, मैं तो यहाँ तिजारत और कारोबार के लिए आया हुआ हूँ, लेकिन मुझे आपके यहाँ का सिस्टम नहीं मालूम कि आपके यहाँ का निजाम क्या है। इतना ही सुनते उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने दुर्रा को रोक दिया और कहा कि नौजवान शख्स, अगर आज तो मुल्क शाम करना होता तो मैं तेरे जिस्म पर इतनी पिटाई करता कि तेरे जिस्म में एक भी चमड़ी बाकी नहीं रहती। मेरे इन कानों ने अल्लाह के नबी की हदीस सुनी है कि मुनाफिकों पर फज्र की नमाज बोझल हुआ करती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर निफाक आ गया है। मेरे भाइयों जरा गौर करो, एक रकात नमाज तर्क हो जाने पर, छूट जाने पर आप उन्हें निफाक समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर कहीं मुनाफिकत तो नहीं आ गई है। मेरे भाइयों, आज कितने लोग होंगे जो सिर्फ हफ्ते हफ्ते में नमाज को आते हैं, अब ये लोग क्या कहलाएंगे? आप ही जरा तस्वुर करो, ये लोग किस जुमरे में शामिल होंगे? कामयाबी तो वो है अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जिनकी नमाज खुशू और खुजू के साथ है। मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज लोग अजान हो रही है और चाय के होटलों पर बैठे हुए हैं, इधर अजान हो रही है, उधर हमसे दुकान बंद नहीं की जा रही है, इधर अजान हो रहे हैं। हर शख्स दुनिया को कमाने में लगे हुए हैं और वो शख्स अपने आप को समझता है कि मैं कामयाब हूं। कामयाबी तो वो है अल्लाह के नजर में जिनकी नमाज खुशू और खुदू के साथ हो और उस बंदे के अंदर खौफ इलाही का जज्बा हो। ईमान मेरे भाई, ईमान ये बहुत बड़ी दौलत है। अगर ईमान अगर लुट गई तो समझ लो आपकी कोई हैसियत नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हमें और आपको कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।